Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 9 Maths and our chapter is Surface Area and Volume. So, student, in this chapter we learn about surface area of any figure. Okay, any solid shape. If the shape is cuboid, if the shape is cube, then how to find the surface area? Surface area means total surface area. Okay, total surface area of a cuboid and total surface area of a cube. Okay, so in our 13.1 में हमने क्या देखा? What is surface area of total surface area of cuboid and cube? Okay, so when we talk about cuboid and cube, so what is total surface area of cube? Total surface area of cube is 6a square, where a is the side of a cube. Okay, and what is lateral surface area? What do you mean by lateral surface area? Lateral surface area means without top or without base. Okay, so what is lateral surface area of a cube is 4a square, where a is the side of a cube. Okay, and when we talk about cuboid, so total surface area of a cuboid is 2 into ब्रैकेट में लिखेंगे L into B plus B into H plus H into L, where B is the breadth, H is the height and L is the length of the cuboid. ओके, अंडरस्टैंड. सेम हियर, अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें क्यूबॉइड के, सो व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड? अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं हम क्यूबॉइड की, तो वो हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच. ओके, so when we talk about lateral surface area or we talk about a total surface area. Okay, understand? So we have to find the lateral surface area and total surface area of cube and cuboid. Okay, now if we want to find the in our next means 13.2 में हमने सीखा था surface area of right cylinder, right circular cylinder. What do you mean by surface area of a right circular cylinder? So total surface area of a cylinder 2 pi r plus h. Okay, and curved surface area of a cylinder is 2 pi rh. Okay, understand? So this way we have find the total surface area and curved surface area of a right circular cylinder. Then we complete the 13.2. Now then we say we can learn about surface area of right circular cone. So when we talk about a cone, so cone में हम देखते हैं आइसक्रीम कोन देखते हैं, उसमें जो एक राइट सर्कुलर कोन है मीन्स वो किस शेप में हो गया? वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में हो गया. सो हमें इस कोन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द स्लांट हाइट. Okay, and slant height is denoted by small l. So how to find the slant height? L square is equal to h square plus r square, where h is the height of the cone and r is the radius of the circle. Okay, understand? So curved surface area of cone is pi r l. ओके, कर्व सरफेस एरिया की बात करें हम कोन की, तो वो होती है पाई आर एल. एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर इंटू एल प्लस आर, वेयर आर इज द रेडियस एंड एल इज द स्लांट हाइट. ओके, understand? So this way we completed 13.3 exercise. I hope you all are completed 13.3 in your notebook. Now yesterday we talk about surface area of sphere. Okay, when we talk about surface area of sphere, so surface area of sphere is 4 pi r square. Okay, surface area of sphere is 4 pi r square. And we talk when we talk about hemisphere, hemisphere means जब आप एक बॉल को बीच में से कट कर देंगे तो हमें क्या मिलेंगे? 2 हेमिस्फीयर. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे वी कैन फाइंड द curved surface area of hemisphere and total surface area of hemisphere. Okay, understand? And I will told you question number first and second you have to complete. Okay, so it's very easy because find the surface area of sphere of radius is given 10.5. तो आपको रेडियस अगर गिवन है तो आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं स्फीयर का. यू नो दैट 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यू नो
pi is 22/7, so you can easily find the सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. एंड सेम हियर, अगर डायमीटर दिया है तो डायमीटर को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डायमीटर इज ऑलवेज 1/2, रेडियस इज ऑलवेज half of the diameter. Okay, so first of all you have to find the diameter, radius, and then find the surface area of sphere. Okay, now let's see question number 3. What about question number 3? So in question number 3 is find the total surface area of hemisphere of radius 10 centimeter. Here radius is given and we know that total surface area of hemisphere is 3 pi r square. Okay, so r is given, you can easily find. क्या करेंगे आप, फॉर्मूले में रख देंगे 3 pi r square. r की वैल्यू है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर. ओके, सो एंड पाई की वैल्यू इज गिवन 3.14 इंटू 10. ओके, 10 का स्क्वायर मीन्स इंटू 100. ओके, व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 100 सो इट बिकम 314. ओके, 100 का मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें तो क्या हो जाएगा ये 314. सो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 314 इंटू 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 3 3 ज़ा 9. सो आवर आंसर इज 342 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे यू कैन फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर. अब अगर रेडियस आप इंक्रीज करेंगे एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द 2 केसेस. अब इन दोनों केसेस में हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है बलून का. बलून किस शेप में है, सर्कुलर शेप में है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द surface area of balloon when the radius is 7 centimeter, and then we find the radius when the radius is 14 centimeter. In और both the cases में हमें देखना है find the ratio. अब रेशो आपको फाइंड करना है तो रेशो आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको बिगर का ही पता है. 7 सेंटीमीटर वाला भी आपने फाइंड किया और 14 सेंटीमीटर वाला भी फाइंड किया. जब आपका आंसर आएगा तो आपको उसका रेशो फाइंड करना है. मीन्स आपको क्या करना है, आपको दोनों का रेशो बताना है. ओके, लेट्स फाइंड. सो फर्स्ट व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ बलून. सो हम लिखेंगे 4 pi r स्क्वायर बिकॉज द बलून हैविंग स्पेरिकल शेप. सो A1 हम फाइंड करेंगे 4 pi r स्क्वायर. हियर r इज इक्वल टू 7. फर्स्ट के लिए क्या है, r की वैल्यू 7 है तो हम यहाँ रखेंगे 7 इंटू 7. 7 का स्क्वायर है ना, 7 से 7 कट जाएगा, 88 इंटू 7. सो योर आंसर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो A1 की वैल्यू आ गई 616. नाउ यू हैव टू फाइंड A2. A2 के लिए भी आप 4 pi r स्क्वायर लिखेंगे. यहाँ पर भी 22/7. r की वैल्यू है 14. 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. यहाँ पर आएगा 88. 14 2 जा 28. 88 इंटू 28 आपका हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपके पास में दोनों की वैल्यू आ गई A1 एंड A2. सो व्हाट वी कैन डू, A1 इज टू A2. आपको क्या निकालना है, रेशो निकालना है. फर्स्ट A1 आया था आपका 616 इज टू 2464. जब आप इसे कट करेंगे सो 616 अपॉन 2464, 2 के टेबल से इजीली कट होगा. 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. अगेन 2 से होगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. अगेन 2 से कट होगा, 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14. यहाँ भी होगा 2 3 जा एंड 0 एंड 2 8 जा. ओके, अब हमारे पास आया 77 अपॉन 308. ओके, अब ये 7 के टेबल से कट होगा क्या,
कट करके देखते हैं। 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 4 ज़ा 28, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44। ओके, सो हमारा आंसर आया 1:4 इज माई आंसर। ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू कैन फाइंड द रेशियो। ओके स्टूडेंट, so this is our fourth question. Now question number 5. A hemisphere bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. ओके, सो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको डायमीटर इज गिवन, सो डायमीटर से आप क्या फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे एंड you have to find radius. Radius is equal to diameter upon 2. Okay, so your answer is, अगर 10.5 है तो आपका रेडियस होगा, रेडियस मस्ट बी 5.25 सेंटीमीटर. ओके, सो व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बाउल ऑफ इनर साइड. अगर हम इनर साइड की बात करेंगे तो 2πr² कर्व सरफेस एरिया होता है. So 2 into 22/7 because we know that pi is equal to 22/7 and r we know that 5.25. Okay, so हम 5.25 को 2 टाइम्स लिखेंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, अब जो भी आंसर आएगा आपको उसको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑन इनसाइड फॉर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹16. अब 100 सेंटीमीटर के लिए 16 रुपीज़ है, तो हमें करना है 1 सेंटीमीटर के लिए फाइंड करेंगे तो 16/100 हो जाएगा. ओके, सो अब इसे फाइंड करेंगे हम 16/100 into 173.25. So your answer will be there. Okay, understand? You have to solve this question. Here question number 6 is very easy because find the radius of a sphere whose surface area is given. अगर surface area is given, so we know that what is the surface area of a sphere, 4πr². So we know that 4πr² is surface area और हमें दिया हुआ कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 422/7 इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 154. ओके, यहाँ से 7 इधर जाएगा, 154 इंटू 7. सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/88. ओके, अंडरस्टैंड? सो इसे फिर से करेंगे, r² इज इक्वल टू 154 इंटू 7/88. 2 के टेबल से कटेगा, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14. अगेन 11 के टेबल से कटेगा. ओके, सो हमारा आंसर आएगा 49/4. 49/4 अगर हम इसको 4 से कट करते हैं, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 पॉइंट, फिर कितना बचेगा हमारे पास 1. सो अगेन 4 2 ज़ा 8, अगेन अब 2 बचेगा हमारे पास में. सो 4 5 ज़ा 20. आपको फिर से अगर डिवीज़न करके देखना है तो आप करके देख सकते हैं. 49 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कितना बचा 1. डेसिमल लगाएंगे 0, 4 2 ज़ा 8 अगेन, अब कितना बचा 2, 4 5 ज़ा 20. सो हमारा आंसर आया 12.25. ओके, ये तो हमारी r की वैल्यू आई, r² की. अब ये r² की वैल्यू है हमारे पास 12.25. सो हम लिखेंगे इसे रूट 12.25 हमारे पास r² की वैल्यू आई. तो सॉरी, r² की वैल्यू है हमारे पास 12.25. सो वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू रूट 12.25. ओके, सो अब हम इसको 12.25 को क्या करेंगे, इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, इसको हम निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे. सो आवर आंसर इज 3.5. सो हैंस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू कैन फाइंड द क्वेश्चन नंबर 6 also. Okay, 7 8 and 9, it's very easy questions, so you have to solve this question also. What is question number 7? The diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth.
फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सो डायमीटर अगर हमारे पास में क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ अर्थ, अगर हमने डायमीटर ऑफ अर्थ को डी लिया है, चलो लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इफ वी टेक डायमीटर ऑफ अर्थ इज डी, तो हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, ये हमारा अर्थ का डायमीटर है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अर्थ के डायमीटर से मून का डायमीटर क्या है, 1/4 है। ओके, सो मून का डायमीटर हो जाएगा 1/4D, या हम D1 लिख लें तो। ओके, सो रेडियस ऑफ द अर्थ, अब रेडियस क्या हो जाएगी अर्थ की, अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो अर्थ की रेडियस होगी D1/2। ओके, सो रेडियस ऑफ द मून, अब मून की रेडियस क्या हो जाएगी, अगर मून की बात करूँ तो वो हो जाएगी 1/4 D1/2। ओके, और वी कैन राइट इट D1/8। अर्थ की रेडियस D1/2, मून की रेडियस D1/8। ओके, यहाँ तक आपका हो जाएगा। फिर अब आपको सरफेस एरिया ऑफ अर्थ फाइंड करना है। सो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, अर्थ का सरफेस एरिया अगर मैं S1 लिखूँ तो वो हो जाएगा 4πr², 4 × 22/7 इंटू पाई कितना है, आर कितना है, D1/2 का होल स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा 4 × पाई, या मैं इसे लिखूँगी D1/2 इंटू D1/2, 2 1 ज़ा 2, तो मेरे पास ये आ जाएगा पाई D1²। ओके, पाई D1² इज़ माई सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ओके, जो केस गिवन है उसमें। अब नाउ हमारा सरफेस एरिया ऑफ मून क्या हो जाएगा, हमारा सरफेस एरिया ऑफ मून हो जाएगा 4πr, हमारा मून का हमारा R1 कितना है, R2 कितना है, सो R², सो 4 × पाई इंटू D1/8 का स्क्वायर मीन्स D1/8 इंटू D1/8। So 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। Okay, so it become pi D1²/16। ओके, सो हमारे पास ये दोनों एरिया आ गए। अब इसका हमें क्या करना है, रेशो निकालना है। फर्स्ट वाले का रेशो मीन्स हमें क्या निकालना है, S1:S2। तो S1 हमारा आया पाई D1²/1 इज टू पाई D1²/16। ओके, सो अब इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पाई D1² से पाई D1² कट हो जाएगा। ओके, सो हमारा ये आंसर आएगा 1:16। ओके, और सॉरी 16:1 हमारा आंसर क्या आएगा, हम अगर पाई D1²/1 इज टू पाई D1²/16। अब क्या करेंगे, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 16 पाई D1² इज इक्वल टू पाई D1²। तो पाई D1² से पाई D1² कैंसिल होंगे, सो हमारा आंसर आएगा 16:1। ओके, अंडरस्टैंड। सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। A hemisphere bowl is made of steel 0.25 cm thick. The inner radius of the bowl is 5 cm. Find the outer curved surface area of the bowl. हमें outer curved surface area find करना है बाउल का। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इट हियर। आपके पास में इस टाइप का कोई बाउल होगा, बाउल इस टाइप का होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ अंदर का ओके, इस टाइप का बाउल है। हमारे पास इनर का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये वाला आउटर का दिया है, मीन्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है 0.25। ओके, ये 0.25 सेंटीमीटर है और यहाँ पर हमें दिया है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ओके, सो यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया। ओके, इनर सरफेस एरिया प्लस थिकनेस, आप इसको फाइंड करेंगे तो आपको आउटर सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा।
Okay, let's find the inner radius of the hemisphere bowl is 5 centimeter. Thickness of the hemisphere bowl is 0.25 centimeter. Okay, so outer radius क्या हो जाएगी 5 plus 0.25. ओके, हमारा पास में जो आउटर रेडियस है इस बाउल की, टोटल आउटर रेडियस क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25, सो हमारी हो जाएगी टोटल 5.25 सेंटीमीटर. ओके, सो आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल इज 2πr² बिकॉज इट्स हेमिस्फीयर एंड आर हमें पता है, हम उसकी वैल्यू रख करके फाइंड कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे यू कैन फाइंड द क्वेश्चन नंबर 8 also. 9 is very easy. Okay, so you have to find the question number 9 also. And so complete question number 9. Now volume of a cuboid. What do you mean by volume of a cuboid? If we talk about volume, so the measure of this occupied space is called the volume. Okay, what is volume? You have already learned about volume of certain figure in earlier classes. Recall that a solid object occupy space and the measure of these occupy space is called the volume of the object. Okay, इसको ही हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं ऑब्जेक्ट का. अंडरस्टैंड. सो नाउ if you want to find the volume of any object, so we have to find in earlier classes we also find the volume. Okay, so here we have to find the volume of solid object when the object is cuboid. Okay, so here just a minute. Okay, so volume of cuboid is measured of the space occupied by it. Okay, to find the volume of a cuboid take few, see हम इस टाइप से कुछ few rectangular sheet of thick paper ले लेंगे of the same size and stack them up in a vertical pile. We will obtain a cuboid as shown in the figure. हम इस टाइप से cuboid find कर सकते हैं. Okay, and अब इसका एरिया, इफ ए इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट एंड एच इज द हाइट ऑफ विच द रेक्टेंगल आर स्टेक्ड अप इन द वर्टिकल पाइल, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, सी. एल इंटू बी हमें पता है रेक्टेंगुलर का एरिया होता है. ओके, और उसमें हम अगर हाइट ऐड कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम मिल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. एंड ऑलवेज वॉल्यूम इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट. Okay, understand, volume is always measured in cubic unit. So what is volume of cuboid? Base area into height, means length into breadth into height is the volume of the cuboid. Okay, understand. When we talk about volume of cuboid, so we can write length into breadth into height. Okay, so it's a volume of cuboid. And same volume of cube is edge into edge into edge, means side into side into side is the volume of cube. Okay, understand. So you have to learn example number 11, 12. Okay, and आप ट्राई करिए 13.5 कंप्लीट करने का. Okay student, so you have to try 13.5 and complete the example 11 and 12. Okay, understand. So complete it, and if you have any doubt tell me on WhatsApp. Okay, 11, 12 आपको एग्जाम्पल करना है और 13.5 आपको करने की कोशिश करना है.
Okay, and if you have any doubt in 13.5, tell me on WhatsApp. Okay student, so have a good day all of you.